Pick a finger and I will answer based on that finger. 3. That's not very. I'll go with this. I'll go with this one is the phrase that Sukriti has used, ladies and gentlemen. From Karan Singh Magic, this is now Karan Singh Boomer. Let's not go there. Tu sawal pooch yaar. Okay. Yes, we are recording. Okay. Hello, people of internet. Welcome to another episode of Badmaash Baatein, and I'm your host Sukriti Grover. Today, I have Karan Singh Magic with us, and बहुत बढ़िया. जैसे मैं बदमाश शब्द सुनता हूँ मैं आ जाता हूँ. Yes, guys. So, हम आज बहुत फन बातें करने वाले हैं. I have lot of questions to this one, and probably वो ऐसे questions हैं जो आप लोग भी पूछना चाहते होंगे. तो क्योंकि मेरे भी दिमाग में वही चीज आई. आई एम वेरी क्यूरियस पर्सन, सो मेरे को यही लगा कि दूसरों को भी यही लग रहा होगा. So yeah, okay, but okay, चल let's begin. How would you introduce yourself? क्योंकि मैं पहले खुद बोलने वाली थी, पर मैंने कहा आप इंट्रोड्यूस कर दो, मैं कुछ गलत ना बोल दूं. सुकृति ने सोचा ये मैं क्यों काम करूं, इसी को बोलते ना करने के लिए. आप ही इंट्रोड्यूस करो. इंटरव्यू भी मैं कर लेता हूं ना अपनी. No, so I introduce myself as magician, mind reader, psychological illusionist, whatever you want to call me. I mix magic and psychology, and when you fuse the two, you can give the illusion that you can read minds. That is pretty much who I am. I know ज़्यादा scary sound करता है, इतना है नहीं. Actually, पता नहीं. But that's what I do, and that's why कुछ लोगों ने YouTuber भी बोलना शुरू कर दिया, which I don't think is justified. I don't think मैं YouTuber अच्छा हूँ. मुझे तो पता है honestly ये YouTuber term ना थोड़ा वैसा लगने लगा है. मतलब I don't know, I just don't like the term anymore. I feel content creator is much better. अरे बहुत बढ़िया. नहीं, content creator सब हैं यार. Content creator, someone who's not even on YouTube can be a content creator. Content कहीं भी create हो सकता है, जरूरी नहीं. अच्छा, okay, cool, ठीक है. जो लोग लाने बुलाओ यार. Tags don't matter. Content creator, YouTuber, loser, बेरोजगार, whatever works. Loser, बेरोजगार. अच्छा, also one request, एक काम कर दो, आप भी अपने साइड से रिकॉर्ड कर दो in case. अच्छा. Yeah. Okay. मैं भी अपने साइड से रिकॉर्ड करूँ. Please record permission from the meeting host. बहुत बढ़िया. शुरू होते ही सुकृति ने बोला, पहले सुकृति ने बोला कि इंट्रोड्यूस करो, फिर बोला कि रिकॉर्ड भी कर दो. अब बोले कि सवाल भी खुद को ही पूछ लो. Allow record. Yes. Allow record. Recording started. Okay. ठीक है. So हाँ, okay. So now I want to ask you the cliche question कि how did you Why start? magic? नहीं, why magic नहीं. How did you start? How did I get into magic? Yeah. इसके मेरे पास 5 अलग-अलग जवाब है, क्योंकि मैं पक चुका हूँ आंसर दे के. So pick a finger and I will answer based on that finger. 3. अरे यार, 3 is the real answer. So the real answer for me getting into magic is मैं 11 साल का था and कहीं से कोई अटेंशन नहीं मिलती थी. बहुत कोशिश कर लिया था, फुटबॉल खेला था, म्यूजिक करा था, किसी चीज से अटेंशन नहीं मिली. एंड देन आई हैड गॉन फॉर अ समर कैंप, और वहां पे मुझे एक म्यूजिशियन मिले कॉल्ड इशामुद्दीन खान, who is still date one of the best street magicians in the country. तो उन्होंने मुझे 2 ट्रिक्स सिखाए थे और मैं पागल हो गया था. मुझे लगा था मेरे को यही करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना लाइफ में. और वो 2 ट्रिक्स मैंने 2 साल करे थे, to everybody I knew multiple times till everyone knew how they were done. तो उसके बाद फिर I saw TV पे David Blaine appeared on AXN. मैंने वो देखा, and then I got into it more and more and more, and then people started giving me attention for it, and that's why I'm a magician. हाँ, so मतलब तो जब ये when you were doing this स्कूल वगैरह में, तो did people find it very cool कि अरे यार ये कैसे कर रहा है या ऐसा? तब होता था ऐसा यार? स्टार्टिंग में तो नहीं था. स्टार्टिंग में तो लूजर ही था जो कार्ड्स लेके आया है और गिराता चला जा रहा है पूरे पीरियड में. टीचर्स डांट लगा रही हैं, मम्मी को फोन करके बोल रही हैं कि आपका बच्चा जुआरी है. All of that was happening in the beginning because obviously magic had not जी, मैजिक का शुरू से आइडिया ही इतना अजीब है ना. कोई जैसी म्यूजिशियन सुनता है, their first thought is कुछ गायब करके दिखाओ and all that. It's not कुछ गायब करके दिखाओ. It's not the kind of magic that I do. तो स्टार्टिंग में वो परसेप्शन चेंज करनी थी. जब परसेप्शन थोड़ी सी चेंज होनी शुरू हुई, फिर थोड़ी वो अटेंशन मिलनी शुरू हुई. That okay, this is something. Do you call yourself a magician? Because you generally your जो shows का तो वो रहता है poster or whatever, उसमें illusionist, mentalist वगैरह you write. So do you refer yourself as a magician? I don't know how to tell you this, Sukriti, but when you introduced me, you called me Karan Singh Magic.
So my magic is in my name. That's like that's a very catchy term. That's why I am just assuming that you. No, everybody. My father calls me Karan Singh Magic now. So I mean, uski everything has अब कुछ नहीं हो सकता उसके बारे में. But I am a magician, mentalist, illusionist. All of that is a branch within magic. तो अगर मैं music करता हूँ, तो I won't necessarily call myself a pop musician या rock musician. I'll call myself a musician, right? Pop and rock are just sort of genres of music. Same way, magic में mentalism is a genre of magic. But I prefer to call it that क्योंकि magic का लोगों का दिमाग में बैठा हुआ है भाई कि काट के दिखाओ, गायब करके दिखाओ, तो वो change करने के लिए I use more serious terms. Okay. So अच्छा एक और सवाल, why do you always wear black? ये मैं बताऊंगा पहले जब मैंने शुरू करा था ना मैंने वीडियोस डालना, मुझे दिन के 100 क्वेश्चंस आते थे कि प्लीज टेल अस हाउ इट्स डन. वो लोगों ने होप गिव अप कर दिया कि मैं सिखाने नहीं वाला हूँ. तो अब मेरे को दिन के 250-300 सवाल आते हैं, प्लीज टेल अस व्हाई डू यू ऑलवेज वेयर ब्लैक. तो इसका जवाब आई विल गिव, ये मैं अपने चैनल पे भी बोल चुका हूँ, आई विल गिव दिस आंसर व्हेन आई हिट 500,000 सब्सक्राइबर्स. तो अगर आपको जानना है तो प्लीज सब्सक्राइब. गाइस यू नो व्हाट टू डू. ओके नाउ माय नेक्स्ट सवाल समझ नहीं आ रहा, मैंने इतना बिल्डअप ले लिया कि मैं अच्छा सा जवाब दूंगा, लोग समझने को क्या बड़ी सी स्टोरी आएगी. एक चुचपुचा सा घटिया सा आंसर. थोड़ा सा अंदाजा है but okay so next question is that about your network. My network? Yeah, I want to know about your network. You're basically asking me कि मैं बॉलीवुड लोगों के साथ वीडियो कैसे बनाता हूँ. That's your question. उससे मैं बाद में आने वाली थी, उसमें बाद में आने वाली थी. I was gonna come later on, but मेरा था कि like you still have a very strong network in terms of people in general. Like not just celebrities, उसमें बात पे आने वाली थी, but okay, you have covered दो, ठीक है. See, I think network is, see, YouTube मेरा बहुत लेट शुरू हुआ है यार. मैंने shows करने शुरू करे थे in 2007-2008 when I was 16 years old. तब मैंने shows करने शुरू करे थे. YouTube पे मैंने videos डालनी शुरू करी है June 2018. So there's a 10 year of just doing shows, live shows. So these are corporate shows, these are public shows, these are Bollywood parties, cricket parties. But शुरू तो मैं birthday party से हुआ था. 1 साल के बच्चे के birthday पे perform करता था मैं. This I used to do every 2 weeks. क्योंकि magic पहले वही था कि magician हो, बच्चों के लिए perform करो. वहां से मैं उनके parents के लिए perform करना शुरू करा. वहां से corporates आए. कॉर्पोरेट्स के बाद थोड़े से मैंने पैसे लगा के इन्वेस्ट करके अपनी टिकट्स बेच के शोज करने शुरू करे. फिर कॉर्पोरेट शो, बड़े बड़े कॉर्पोरेट शोज आने शुरू हुए. उन बड़े कॉर्पोरेट शोज पे उनके ब्रांड एम्बेसडर्स आते थे. वहां से कुछ सेलिब्रिटीज मिलने शुरू हुए. वहां से उनकी प्राइवेट पार्टीज करनी शुरू करी एंड देन जस्ट ग्रोस फ्रॉम देयर. तो जब मेरा यूट्यूब शुरू हुआ, आई वाज ऑलरेडी फ्रेंड्स विद आमिर एंड शाहरुख एंड ऑल दीस पीपल, सो इट वाज इजियर फॉर मी टू अप्रोच देम. और इफ आई एम एट अ पार्टी व्हिच आई हैड बीन बिफोर आल्सो, instead of just me being there, अब साथ में फोन का कैमरा भी होता था बस. वो भी एक छोटी सी ड्यूरेशन की. अगर मैं 8 घंटे के लिए पार्टी करूँ तो कैमरा सिर्फ 2 मिनट ऑन है जिसकी वीडियो चल रही है. बाकी 7 or 50 minute 8 minutes is a regular show or a regular party that I'm at. That's it. Oh, okay. So like then you do have the chance to like interact with them often. हाँ, अगर उनके घर पे अगर there's a party or something which I've performed at before and they've called me again, तो मैं बस रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं 2 मिनट के लिए एक वीडियो बना लूंगा. एंड दे आर ओके विद दैट क्योंकि पहले आई हैव बिल्ट दैट नेटवर्क. आई हैव स्पेंट अ डेकेड डूइंग दैट. if you have to give tips on how to build a network, because मेरे से जब कोई पूछता है, I don't have answer to it. मेरे से बहुत लोग पूछते हैं, अच्छा आप इसको कैसे जानते हो, आप उसको कैसे जानते हो. मैं कैसे बताऊं, मैंने डीएम किया, उसने रिप्लाई कर दिया, बस. यार see, it's not पता नहीं, मुझे भी नहीं पता टू बी ऑनेस्ट कि नेटवर्क कैसे बनाते हैं. बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कुछ भी करो यार, यू बी ऑनेस्ट, यू बी जेन्युइन, यू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ. कई लोग सी, इफ देयर इज समवन अल्ट्रा फेमस, उनको बहुत आदत है कि लोग उनके पास आके चेक हो रहे हैं. एंड एवरीबडी वांट्स समवन्स टाइम. And someone who is looking to be successful, starting off in YouTube or already has a YouTube channel and wants to establish it more, उनको हमेशा होएगा यार इनके थ्रू में क्या कंटेंट निकाल सकता हूँ मैं इनसे, क्या बातें कर सकता हूँ, इनके मेरा क्या फायदा हो सकता है. बट दैट्स प्रॉब्ली नॉट द बेस्ट अप्रोच टू गो विद. लाइक आई हैव नोन यू आल्सो. आई थिंक 2-3 बार मैं पहले मिला हूँ आपसे.
एंड इट्स नॉट लाइक मैं जैसे ही मिला आपको आपने बोला कि वो वीडियो बनाते हैं. I met you 2-3 times. We spoke a little bit. Even if ज़्यादा बड़ी conversation नहीं हुई, थोड़ी-थोड़ी हमारी बातें हुई. And then now when you ask me, now I know who you are. So you've spent time developing थोड़ा सा relationship before asking for a favor or asking for me to be on your podcast. तो वो थोड़ा सा आपको time लगा to build that relationship. ऐसे ही अगर मैं पहली बार जैसे मेरा I can tell you a story. My video which has Virat and Anushka. That's a show that I do for the IPL every year, RCB every year. तो पिछले साल जो ये शो था there were no cameras allowed at that time because Anushka was also there and they weren't comfortable for whatever reason, which is absolutely fine. तो मैंने शो करा and after my performance I was talking to Anushka. उन्होंने बोला कि उन्होंने कुछ वीडियोस देखी हुई हैं which was mind blowing to me. अनुष्का शर्मा ने मेरी वीडियोस देखी हुई हैं. And then I said, oh, whenever you're coming out with a movie or something, we should definitely do a video together also. She said yes, definitely. फिर और थोड़ी conversation हुई. उसके बाद somebody suggested that I do a trick for Virat and Anushka both. And then I just asked Anushka, is it okay if I film just 2 minutes of it? She said, yeah, sure. Even if it happened in that moment only, उसी पार्टी में 2 घंटे में relationship build हो सकती है. क्योंकि पहले मैंने जबरदस्ती नहीं करी कि नहीं मैं वीडियो ही बनाने आया हूँ. Video was not priority. Video is never priority. Priority is the people. आप उनसे बात करोगे, उनसे relationship develop करोगे, automatically यार सब आएंगे यार वीडियो पे, चाहे वो जितना बड़ा या छोटा इंसान क्यों ना हो. एवरीबडी वुड लव टू पार्टिसिपेट एनीथिंग दैट यू आर डूइंग इफ इट्स फन. क्यों नहीं करेगा कोई? इफ दे लाइक यू एज अ पर्सन, दे विल डू एनीथिंग यार. चाहे फिर मैं मैजिक करूं, म्यूजिक करूं, गिल्ली डंडा खिलाऊं, उनसे दे विल डू इट इफ दे लाइक मी. यू आर मोर इंपॉर्टेंट देन योर कंटेंट. TED Talk with Welcome to my TED Talk. ज्यादा सीरियस हो गया. अब से हम we'll shift to a TED Talk from now. ये चीज मैंने भी नहीं सोची कभी कि okay, yes, this is what I do. हाँ, you don't realize it. मैंने भी सोचा इसके बारे में क्योंकि मेरे को भी बहुत लोग पूछ चुके हैं कि वो आपका तो चैनल पे सब्सक्राइबर्स इतने ही नहीं है, तो ये लोग आपके साथ कोलैबोरेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोस्ती बना ली उनके साथ, तो वो क्यों नहीं करेंगे? मुझे भी ये कहते हैं आपके तो सब्सक्राइबर्स नहीं है. मैंने कहा हाँ, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग. ओके, मैं उन सब्सक्राइबर्स नहीं, आई मीन जितने हैं बहुत अच्छे हैं. जब भी होते हैं बहुत सही होते हैं. हाँ, सो यार आई ऑनेस्टली फील कि मतलब मेरे लिए नंबर गेम नहीं है. जब कंटेंट अपने हिसाब से खुश होके डाल रहे हो उतना ठीक है. Exactly, that's all that matters. Yeah, that is all that matters. So, हाँ, okay. Okay, so हाँ, I want to ask you this कि when did it hit कि you realize कि मैं famous हो रहा हूँ, like people are recognizing me? मुझे famous, I enjoy when someone comes up to me and asks for a picture or asks to talk. I love that. But मेरा दिमाग में कभी ऐसा नहीं था कि मुझे famous होना है. नहीं मतलब जैसे hit कब हुआ कि यार okay, people. Yeah, hit. I can tell you the first time somebody recognized me. This was, I did a show at Kamala Nehru College. This was 2013, I think. तब मेरी कोई वीडियोस नहीं थी, कुछ भी नहीं था. एक फेसबुक पेज था करण सिंह मैजिक के नाम से, दैट्स इट. और कुछ भी नहीं था, ना इंस्टाग्राम था, ना यूट्यूब था, ना कुछ था. आई डिड अ शो. यूजुअली जब भी मैं शो करता था, मैं शो खत्म करता था, अपना चिकन खाता था और घर आता था. दैट यूज्ड टू बी माय शेड्यूल. कमला नेहरू के बाद मैंने शो करा, इट वेंट रियली वेल, एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो यूज्ड टू स्टडी इन कमला नेहरू. तो उसके 1-2 हफ्ते बाद मैं उसको मिलने गया था. आई पिक्ड हर अप फ्रॉम कॉलेज एंड देन वी वर गोइंग टू ईट लंच, और देयर वाज दिस गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड the college who was looking at me and smiling. So I smiled back. कि अगर कोई smile कर रहा है तो वापस smile कर दो. Then she came running up, like, oh, you're the magician. I'm like, yeah. And then she said, can I have a picture? And I was so embarrassed because I have no idea how to react to something like that. But it was very cute, and that happened. And it increases. But I think अब होता है कि हाँ, I can't go to an airport. अब तो कोई भी एयरपोर्ट नहीं जा सकता, कोरोना चल रहा है. बट व्हेन देयर इज नो कोविड, इफ आई एम ट्रैवलिंग अ लॉट, एयरपोर्ट पे इनएविटेबली होता है, व्हेन somebody will come up to you, a few people will come up to you for pictures. So that it feels nice. But so I know for a fact that you are mostly in SDA, तो वहाँ पे you are very good. बता दो, सबको बता दो. मतलब you have your like एक go to अड्डा. तो वहाँ पे ऐसे कोई stalker walker कभी ऐसे, because बरिस्ता पे I have seen you a lot of times, but तब मैं ऐसे ट्यूशन जा रही होती थी, तो I'm like okay. SDA बरिस्ता is my hangout spot. मेरा स्कूल भी उसके पास था, तो मैं जब से छोटा हूँ been going to SDA a lot. And कई बार हुआ है, कई बार तो people are very nice, they'll come up to me and they'll speak to me. And I love that.
Stock. हाँ यार, सबसे स्कैरी चीज हुई है, हम एसडीए में बैठे थे, मी एंड 2-3 फ्रेंड्स ऑफ माइन, फिर हम घर आए एंड उसके एसडीए बरिस्ता के साइड पे ना एक मोमोज वाला है, बहुत सही मोमोज होते हैं उसके, एंड मैं रोज मोमोज खाता था उसके, एंड दैट साउंड्स वेरी रॉन्ग, मैं रोज उससे मोमोज खरीद के खाता था, एंड हम आई थिंक देयर वाज 1-2-3 फ्रेंड्स ऑफ माइन, हमने मोमोज खरीदे, खाए और घर चले गए, नथिंग हैपेंड, एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन, नॉट मी, जो फ्रेंड जिसके साथ मैं खा रहा था, शी गॉट एन मैसेज विद अ पिक्चर ऑफ मी एंड हर स्टैंडिंग एट द मोमोज वाला और विद द कैप्शन सेइंग मोमोज कैसे लगे मैम. नाउ द स्कैरियर थिंग इज दैट दैट पर्सन नोज हर नेम आल्सो. उसका प्राइवेट अकाउंट है और उसको मैसेज आ रहा है कि मोमोज कैसे लगे. आई एम लाइक डूड दिस इज अ लिटिल स्कैरी. आप आओ बात करो, मैं कभी मना नहीं करता, मैं किसी भी सिचुएशन में कोई भी मेरे से बात करना है मैं 100% करूंगा, बट ये थोड़ा क्रीपी था. Yeah, shit, this is very creepy. Oh my god. Guys, मेरे साथ कोई ऐसे मत करना प्लीज. मैं बहुत सारी डेट्स पे जाती रहती हूँ इधर उधर. Don't do this. हाँ. नहीं, this actually happened. I was there SDA में कोई एक रेस्टोरेंट में जा रही थी मैं, तो I saw you, but I had another friend. मैंने कहा कि मैं जाऊँ, should I say hi to him? फिर मैंने कहा यार ये डिस्टर्ब हो जाएगा कि ये देखो कैसी हरकतें कर रही है, तो फिर मैंने ध्यान नहीं दिया. And then I was like, okay, fine, I'll go with this one. I'll go with this one is the phrase that Sukriti has used, ladies and gentlemen. Because age gap. Nice, very nice. Okay. बुढ़ा continue. बोले आप. मैं जलील हूँ. This is now from Karan Singh Magic. This is now Karan Singh Boomer. It's no longer Karan Singh Magic. Wait, 2007 में you were 16 years old. मतलब, and that time I was 8 years old. Now बहुत ही बढ़िया. You're 20. You're 20 now. 21. You're 21. I'm 29. Very nice. Yeah. अच्छा हाँ, what did you think? मेरी एज क्या होगी? I didn't think यार, मैं ये सोच के नहीं आया था कि तू कितने साल की होगी. मैं बस age doesn't matter as long anyway. Let's not go there. तू सवाल पूछ यार. ठीक है यार. Okay, I want to talk about your shows right now. अभी कैसा चल रहा है scene? Your shows कैसे चल रहे हैं अभी? How is it happening? यार, I've been very, very, very lucky as with everything else in my life. 24 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ था. 25 मार्च को पता नहीं किस फील्ड में मैंने जाके इंस्टाग्राम पे बोल दिया कि अगर किसी को भी शो देखना है आप मुझे डीएम करो, मैं आपकी और आपकी फैमिली के लिए 10 मिनट परफॉर्म करूंगा. आई केम अप विद दैट आइडिया. मुझे लगा ठीक है, मैं भी बोर हो रहा हूँ, लोग भी बोर हो रहा हूँ, 2 हफ्ते का कोरोना खत्म हो जाएगा. मुझे लगा 2 हफ्ते में मैंने कुछ 100-150 फैमिलीज के लिए परफॉर्म करा. And then this journalist got in touch with me saying, oh, I saw this post. Can you perform for me and my family also? मैं बोला ठीक है. मैं perform करा and turned out the journalist was from the New York Times. And then the New York Times did a feature on me doing shows online. It was on the front page of the New York Times on 7th of May. And that blew up. उसके बाद से I've been doing pretty much multiple shows every single day during lockdown. So I've had a lot of fun. Shows. हाँ यार, क्योंकि कुछ ट्रैवल नहीं है, कुछ नहीं है ना. तो पहले होता था कि मेरा शो है, बॉम्बे में शो है, मैं यहाँ पे सुबह 10 बजे उठ रहा हूँ, 12 बजे की फ्लाइट ले रहा हूँ, 2 बजे बॉम्बे पहुंच रहा हूँ, होटल तक 4 बजे तक पहुंच रहा हूँ, थोड़ी देर सो रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, 7 बजे स्टेज पे चढ़ रहा हूँ, 8 बजे तक शो खत्म हो रहा है, फ्लाइट लेके 1:30-2 बजे रात तक घर वापस आ रहा हूँ. That's one show that I can do. Now what I can do is अभी मैं सो के उठा हूँ just before, अभी कितने 3:30 बजे, मैं I think 2:30 बजे सो के उठा हूँ जब तेरा मैसेज आया. एंड मैंने अभी ये इंटरव्यू करी है. 5 बजे मेरा एक शो है, 7 बजे मेरा एक शो है, 9 बजे मेरा एक शो है. कुछ ट्रैवल नहीं करना. मैंने शर्ट पहनी है, नीचे मैंने शॉर्ट्स पहनी है, किसी को नहीं पता. मेरे को शूज नहीं पहनने, कुछ भी नहीं करना. So it's easier to do these shows. You can do multiple shows. It's not as much fun, obviously, because stage को नहीं replace कर सकते. But ठीक है यार, I think it's the best of a bad situation. Plus, I mean, ये internet पे shows करना is slightly weird क्योंकि लोगों के लिए ये वीडियो ही है. लोगों के लिए ये is as same as a YouTube video, but this video cannot be paused, and this will only play out a specific duration for a specific time. So people really need to take out time also to see this. So hey, interesting times, but ठीक है, I think it's need of the hour. Okay, interesting. But like, how's the response? Like, okay, पहले you tell me about
you? Like, how is it difficult for you in any way to do it? हाँ यार, क्योंकि देख, अगर मैं शो लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग इट विद अ लाइव ऑडियंस इन माइंड, राइट? Right. Someone is coming up on stage, I'm talking to them, I'm reading their mind, so on. Hmm. With an online show, I have to completely write a new show. I have to completely write a new script. और show लिखने में 6-7 महीने लगते हैं कम से कम to write a 90-minute show. मगर for that I've had to do that 6-7 months का process in 2 weeks. Show बनाए, show करते करते. The show has been made while I'm performing it. अगर 90 मिनट का मैं शो कर रहा हूँ, जब मैंने फर्स्ट 90 मिनट्स करे, I had 16 tricks in those 90 minutes. यूजली अगर मैं लाइव स्टेज पे करता हूँ 90 मिनट्स में 5 ट्रिक्स होते हैं, और मैंने 16 करे थे ऑनलाइन, क्योंकि बना ही नहीं था शो, बनता चला जा रहा था as I'm doing it. अब it's been cut down, now it's down to my 4 or 5 that I usually do in a show. But like पहले जैसे you have done couple of videos जिसमें end में you have said कि I'll do this trick on my Instagram live. This is before Corona. That I will do this trick Instagram live पे इतने देर, so come and like watch it, whatever, ऐसा करके, ठीक है? तो उससे I thought you already had something in mind कि अगर ये Excellent, very good question, very good observations. I'm proud of you. That's true. क्योंकि Instagram live पे जो मैंने कई बार perform करा था, उससे I had built an understanding of how a show like this can work. मुझे नहीं पता था कि कोरोना आ जाएगा एक दिन, ऐसे कोई जादू नहीं था मेरे में, अंतर्यामी नहीं था मैं. जादू. Now you know it. Exactly. But at some level I was prepared. But ये भी सोचना that if I've done a trick on Instagram live and I put it up on YouTube, that trick can never be done in a live show. मैं टिकट खरीद के लोगों को अपना वीडियो वाला ट्रिक नहीं दिखा सकता. It has to be something new. तो even if I had an understanding कि क्या क्या हो सकता है, I still had to come up with new material for it to work on a platform like this. और Instagram लाइव पे परफॉर्म करना और शो में परफॉर्म करना बहुत डिफरेंट है यार. Instagram लाइव पे लोग सिर्फ बकचोदी करने आए हैं, और मैं बकचोदी बोल सकता हूँ. हाँ, Instagram लाइव पे लोग सिर्फ, तीसरी बार बोल रहा हूँ, Instagram लाइव पे लोग सिर्फ बकचोदी करने आए हैं और मैं बातें कर रहा हूँ and I'm performing for them. And that is like a 5-minute chit chat and a trick. Show is 90 minutes. उसमें स्टोरी है, कनेक्शन है, लोगों से बातें कैसे करनी है, स्टोरी क्या सुनानी है. It can't just be tricks. लोग अपना टाइम अगर टिकट खरीद के दे रहे हैं, it has to be something different from videos. Videos में सिर्फ ट्रिक होता है, लाइव शो में स्टोरी होती है पूरी. कभी किसी शो में, लाइक अभी इंस्टाग्राम पे हो या फिर अभी आई मीन यूट्यूब पे हो या फिर कहीं भी, और इन जनरल लाइव शोज पे कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान ने थोड़ा सा फक अप करने की कोशिश की है? यार वो तो हर जगह होता है, चाहे वो स्टेज पे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम लाइव पे हो, चाहे वो जूम पे हो, कहीं पे भी हो, चाहे वो जियो मीट पे हो, जहां पे भी शो हो, people will try to mess you up. ते मैजिक के साथ बहुत अलग अलग टाइप की ऑडियंस आएगी. काफी कुछ ऑडियंस होएगी जिनका काम होएगा टू ट्राई टू फक अप योर ट्रिक. फक बोल सकता हूँ मैं? मैंने भी तो बोला. अच्छा हाँ, cool. People will try to fuck up a trick inevitably. They will try to mess with you. तो हर बार होता है ऐसे, but now I invite that. I look for people जो ऐसे पंगे लेंगे, because ऑडियंस में जो लोग बैठे हैं उनको दिख रहा है कि ये बंदा चूतिया है और ये पंगे लेने वाला है. तो अगर मैं उसी बंदे को चुप करा देता हूँ, अगर उसी बंदे जो हैकल करने वाला है, अगर वही इंसान चुप हो जाता है, तो पूरी ऑडियंस अगले 90 मिनट के लिए कुछ नहीं बोलेगी. They will only do what I tell them to do. क्योंकि उनको लगेगा यार इसने तो ये इस सबसे बड़े चूतिए को चुप करा दिया, हम क्या हैं. That is true. So I have to, वो obviously comes with practice on stage. उसमें टाइम लगता है to shut down. जब फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, when you realize ऐसा हुआ कि किसी ने आके try to mess up something, तो तब वो how was it? What happened? तो मैं छोटा था और मैं क्रिकेट खेलता था. I'll tell you why this is related. जब मैं क्रिकेट खेलता था, I was that, you know, हर ग्रुप में एक बच्चा होता है कि जैसे ही हारना शुरू होता है, बैट और विकेट लेके घर चला जाता है. I was that kid. जैसे ही हारना शुरू हुआ, मेरी बैटिंग खत्म हुई, विकेट्स लेके घर चला गया, विकेट्स मेरी हैं, अब देख लो क्या करना है. तो जब शो गलत हुआ था, मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे करना ही नहीं है ये, मैं अपना शो लेके घर जा रहा हूँ और मैं तकिए में जाके रो रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं खेलना है, मैं नहीं आ रहा. So that was me the first time it happened. I was on stage, I had that moment कि नहीं मम्मी मुझे घर जाना है, मुझे नहीं खेलना है ये. But audience वगैरह क्या था? How was it? Like, yeah, I got booed off stage. People started booing because मुझे नहीं पता. And that will happen at any performer's life. You have to become a good performer. You have to be booed off stage at least 10-15 times.
ताकि आपको समझ आए क्या कर सकते हो क्या नहीं. So I got booed off stage. It was fine. I mean, it was, मेरे को 1-1.5 साल लगा था to get over that. But क्योंकि जब भी रात को सोने जाओ जैसी शांति होती थी आपके दिमाग में That's a lot of time. Yeah, it is, because you love it so much and you're on stage, and imagine a hall full of 1,000 people of your college friends are booing you. उसके बाद कॉलेज जाना है आपको रोज, वही लोग मिलेंगे आपको जिसके सामने आप बू हुए थे. तो एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड 1.5 साल मेरे दिमाग में बू चलता था. But gradually you get over it. More and more you go on stage, you get used to handling situations and you get used to performing. And you get used to adapting to any situation. Now I love it if someone tries to mess something up, because that adds to the show now. Because now you know कि अच्छा ये करेगा, but मैं उससे ज़्यादा prepared आया हूँ. मैं कुछ कर सकता हूँ. हाँ, मैं prepared. मेरे को पता है. अगर मेरे पास 30 मिनट, अगर मेरे पास 90 मिनट का शो है, मेरे दिमाग में वो 4.5 घंटे का शो है, क्योंकि हर मिनट के मेरे पास 3 मिनट के बैकअप्स हैं कि अगर ये होएगा तो मैं ये कर सकता हूँ, ऑडियंस ये बोलेगी तो ये कर सकता हूँ, ये होएगा तो मैं ये कर सकता हूँ. And everything के लिए I have 3 backups. So if something goes wrong, I know what to do in that moment. Okay. And so now, like when live shows pe, what is the thing which goes in your mind when you are picking a person for your show? क्योंकि मैंने 2 बार ट्राई किया, मुझे कभी पिक नहीं किया. यार तेरे को मैं जानता हूँ ना, और अगर मैं तेरे को स्टेज पे, I don't get people I know. I'll get people at random. सबसे पहला इंसान will usually be literally first इंसान जिसके ऊपर नजर पड़ी. I start my show by making a joke on one person who's sitting in the front row, who's done the mistake of sitting in the front row. शुरू होता है उसके ऊपर joke. stand up में भी यही होता है. Stand up में भी यही होता है. I have taken a lot of learnings from stand up. And पहले रो में जो बंदा बैठा है उसका जोक बनता है throughout the show. He is the callback now. उसके ऊपर जोक बनता रहेगा throughout the show. उस इंसान पे. And he will be the, so before the trick also, it is that one person who I'll make fun of. And then the first trick is done with a friend of his or her, jo bhi hai. It's usually a man who I pick on in the beginning. And it's best if he's sitting with a girl, because then I can do a trick on her and then use both of them together as jokes for the rest of the show. Right. Okay. Yeah. Achha, so you said certain learnings from stand-ups. What are the learnings from stand-up? Yeah, learnings from stand-up. See, I mean, because of the stand-up boom which AIB got in 2011, 2012, this was even before AIB existed. I had done a show with Rohan and I think Khamba. और उसके बाद I realized that because stand-up इतना popular हो रहा है, इतना famous हो रहा है, automatically the only live shows that people were going for was stand-up. लोगों ने music के लिए भी जाना छोड़ दिया था. It was just stand-up that people used to go for. Theater भी यार बहुत कम audience है यार theater की. तो stand up के लिए ज्यादा जाते थे लोग. And the learnings that I had to adapt from that was little things like crowd interaction. अगर मैं trick कर रहा हूँ, अगर मैं किसी को stage पे लाके उनका mind read कर रहा हूँ, that is not crowd interaction. That's a part of my show. What more can I give them? Jokes are a part of stand up. जो interaction is added on. Interaction with the audience, अगर आपसे बात कर रहे हो, आप क्या करते हो, and then making a joke on that is something that I learned from stand up. And if I'm doing that, if I'm talking, अगर किसी ने interrupt करा मेरे को, या किसी ने fuck up करने की कोशिश करी, I talk to them, and based on that conversation a trick happens. Then automatically that's so much better than just me getting somebody on stage and the show happening. Because if something extra happens, even if it's not that great as the show, it'll still get a bigger response because it was unplanned. Unplanned cheezein in a show, and if they go well, the audience will love you for it. Same way, अगर stand-up comedian अगर कोई joke मार रहा है, which is of the news which happened 2 days before, that will get a bigger response than the best joke of his show, because it's a topical joke. Because that's unplanned. That's not a part of the show. The same way, if I do something topical, do a trick which is topical, that will get bigger response than what is the part of the show. So those are some learnings that I've got from stand-up. And what about certain tricks you do? जो मतलब थोड़े से for some shows, for some events you customize, उसके लिए ज्यादा टाइम लगता है. जैसे हो गया Comic-Con हो गया, या you have done Zomaland में you did some trick, मेरे को याद है, which was a little customized. So like उसमें टाइम लगता है, या you have a trick in your head, बस उसको you just change it according to the event? I mean, if I'm working with a company and they want me to do something specific and they are paying me to do something customized for them,
I want to make something new. I want to make something which will fit perfectly for the brand. So I how want to much work time do closely you with them. invest in that? कितना time it goes यार, to making that? depends. Sometimes it can take 2 days. Sometimes it can take 1 day. Sometimes it can take 2-3 weeks also. It depends on the kind of customization, the level of So customization. they tell you कि ऐसा करना है या फिर you do it? No, they tell me कि we need some kind of customization. What can you offer us? उनको नहीं पता ना ट्रिक्स क्या हो सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि जो मैं उनको ट्रिक पिच करूं वो अप्रूव कर दें. कई बार बहुत बार होता है that I'll spend 3 weeks making something customized for a brand and then say हमको नहीं करना है, this doesn't fit with our ideology. तो फिर वो चेंज करना पड़ता है. कई बार होता है. So I work very closely with all these brands and try to come up with something customized which I think will suit me, will suit them and will be entertaining for the audience. तो सबका भला हो. It won't just be कि आप मुझे पैसे दे दो मैं आपकी ब्रांडिंग कर दूं. That's not the motive. The motive is कि सबके लिए entertaining हो, सबके लिए फायदेमंद हो. That brand should be lucrative to me. I should be lucrative to the brand, and our partnership should be lucrative to the audience. That is what I try to work with when I'm trying to come up with something customized. Right. Oh. है ना, भारी ना. नहीं मेरे को समझ आया. पॉडकास्ट करेंगे हम 5 सा बदमाश बातें और क्या ही टेक टॉक निकल रही है आज ये पता नहीं. नहीं बट पता है why I started this podcast is because कि मेरे को ना लोगों से ये सारे क्यूरियोसिटी होती है पूछने के लिए सवाल, तो मैंने कहा ये लोगों को भी सुनाएंगे आप. बहुत बढ़िया. अब बदमाश बातें इसलिए क्योंकि लोग ज्ञान वाली बातें करेंगे, बदमाश एलिमेंट मैं ऐड करूंगी. अरे बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया. वेरी गुड, कंटिन्यू. हाँ. Oh, questions. बाकी तो ऐसे फ्लो में आ रहे थे ना कि you're saying something this one. Questions क्या थे वो तो भूल ही गई. हाँ ये जो अच्छा कुछ लोग तो वैसे भी मिले होंगे very cliche कि ये ट्रिक बताओ ना ये कैसे किया. वो I want to know about. दिन के 200-300 कम से कि ये ट्रिक कैसे, लोग रैंडमली पूछते हैं अरे भाई आपने वो वाला कैसे करा था, जैसे मैं अभी बता दूंगा अरे उसमें ये करा था मैंने और उससे हो जाता है. मगर मैं कोई भी अपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे करूँ कि आप सवाल पूछो मैं जवाब दूंगा, लोग इतने फील में पूछते हैं अरे भाई वो पासवर्ड वाला ट्रिक बता दो. अबे मैं 18 साल से गान मरा रहा हूँ इस इंडस्ट्री में ये वाला ट्रिक करने के लिए और आपने पूछा और मैं तुम्हें बता दूं ऐसे ही. That is so true. हाँ तो मतलब कितने मैसेज आते हैं ऐसे दिन में? अरे बहुत सारे यार, अब तो मैंने पढ़ने छोड़ दिए बिकॉज इट्स जस्ट अबाउट कि ये सिखा दो वो सिखा दो, मैजिक कहाँ से सीख सकते हैं आप, ये वाला ट्रिक मुझे बता दो, मुझे मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, मुझे अपनी लाइफ इम्प्रेस करना है, मुझे अपनी क्रश को इम्प्रेस करना है, ऐसा कुछ भी मतलब पता नहीं यार लोगों का. my career is built on secrets. If I give them away, I am nothing. I am just a weird looking man. That is it. और कुछ नहीं बचेगा मेरे पास. What about your magician friends या ऐसे लोग you have a discussion with कुछ tricks के हिसाब से उनको भी कुछ पता होगा already कि अच्छा ये trick ये ऐसे करता है, I know it. But there are certain discussions you must be having with them कि about tricks या कुछ तो of course. What about that? Circle के साथ मैं खुशी करता हूँ. I think there are a few friends I have in India outside of it also. I've been very lucky to be friends with mega star magicians around the world जिनसे मैं कभी बात कर सकता हूँ. And about magic, and within India also, within Delhi, I have a few friends. One of them is our mutual friend, who I do talk to, and ideas share करते हैं. We brainstorm, we talk back and forth. I make it a point मैं हफ्ते में एक बार यहाँ से किसी म्यूजिशियन को मिलूं या किसी से बात करूं, because it's inspiring for me also to see what other people are doing. Otherwise, if I'm resting on my own show, you are amused कि यार ये बंदा ये ट्रिक कैसे करता है. पहले होता था of course, जब मैं छोटा था. अच्छा 2013 तक होता था मेरे को that यार ये वाला अगर जैसे जो मुझे मैसेज आते हैं ना ये सिखा दो लाइफ सेट हो जाएगी, मुझे होता था यार उसका ये वाला ट्रिक मैंने कर लिया तो लाइफ सेट हो जाएगी. बट ऐसा कभी नहीं होता. You have to come up with your own things. I think over time more and more things I've come up with. अब मुझे इतनी curiosity नहीं, even if most of the things I can now figure out if I see a trick, more often than not I will know how it's done. मगर अब मुझे ये नहीं होता. अब मुझे पता है कि मेरे स्टाइल को क्या सूट करेगा, मेरी ऑडियंस क्या देखना चाहेगी. I have to think of a lot of things now before I do a show or do a trick also. मेरे को बहुत मजा आ रहा है इस कॉन्वर्सेशन में. जनरली पता है मैं बहुत जोन आउट हो जाती हूँ बात करते करते. मेरे को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है.
अच्छा जोन ओके आउट में मजा आ रहा है कि जोन आउट नहीं हो रही इसलिए नहीं मजा आ नहीं रहा है? होने में नहीं मैं अच्छा फिर ठीक है. हाँ मैं जोन आउट हो जाती हूँ बात करते करते देन आई एम लाइक बिकॉज यहाँ पे हो रहा है ना कि ओके आई एम लिसनिंग एंड देन यहीं से मुझे क्वेश्चन आ रहा है तभी मैं क्वेश्चंस भी नहीं देख रही थी अपने में को ऐसी हाँ. सो Very या nice. This is better. The natural conversation always the flow is हाँ better. सो हाँ ओके अब हम थोड़े से ऐसे लाइट हार्टेड अब थोड़ा सा हल्का हो जाते हैं Okay. From TED Talk to Dead Talk. Let's do this. yes let's do this so this is actually the बदमाश बातें segment Okay. अभी तक थोड़ा सा ज्ञान हो रहा था अभी बदमाश बातें होगी so okay now tell me who are you watching आजकल YouTube पे during this time I am watching Samay. I'm watching a lot of Samay Rana. I have become friends with him during lockdown. I am watching Tanmay. Tanmay has always been my favorite creator, and I'm so happy to see him back and doing Samay what if he you're does. listening please come on my podcast वो हाँ बोल के वो भाग गया है हसल आ जाता अरे है मैं उसके I'm साथ स्ट्रीम not करता हूँ मैं kidding उसको बोलूंगा हाँ प्लीज अरे वो हाँ बोल के वो घोस्ट कर दिया मेरे को मैंने कहा अरे अरे घोस्ट नहीं करा वो टाइम वाइम का प्रॉब्लम होता है आई अंडरस्टैंड हाँ समय तन्मय एंड yeah I think that's it समय and तन्मय are two they're like TV shows कभी भी ऑन करो कुछ नया आ रहेगा मैंने समय में It's मतलब like- बहुत इंटरेस्टिंग पिकअप लाइन भी मारी थी कि कोई पॉडकास्ट पे आ जाए शाबाश क्या बोला था I like chess players because they know very well how to mate. बहुत ही बेहतरीन हग्गार मचा दिया आपने समय की स्ट्रीम पे Guys, अगर ये पिकअप लाइन अच्छी लगी तो नीचे लिख दो ठीक है अगर नहीं अच्छी लगी तो भी लिख very दो good. because I need engagement. I won't crack the line I have मैं स्ट्रीम के बाद बताऊंगा Okay, okay. अच्छा हाँ now tell me about some very weird हो गया या interesting हो गया fan encounters you have had. weird या interesting अरे हाँ, यार कुछ भी मतलब एक तो वही हो गया वो फर्स्ट वाला हो गया या हाँ वो that's special stock that's वाला not हो weird गया। that's stock वाला तो weird था that was very weird can I think of something nice something interesting हाँ यार मेरे बॉम्बे में मैंने अपना शो करा था on 1st of December 2018 and एक बच्चा थर्ड या फोर्थ रो में चुपचाप बैठा हुआ था and I tried to get him on stage and he was very shy तो मैंने छोड़ दिया उसको स्टेज पे लाया मुझे लगा ये घबरा रहा है and then after the show after every live show I do a meet and greet I meet anyone who's come for the show उसको मिला and he just started crying and he hugged me he's like I've been wanting to meet you for so long and then he'd drawn like 4 बड़े-बड़े sketches of me performing and he'd seen all my interviews और उसने हर इंटरव्यू से एक कोट लेके उस स्केच के नीचे रखा था and it was beautiful that's a beautiful memory that I have I won't forget it I think it's such a special thing के कोई टाइम निकाल रहा है ये करने के लिए which was fantastic weird अगर आपको चाहिए तो मैं आपको अपनी Instagram DMs की screenshots भेज दूंगा that's I don't know if that's an encounter but उनका encounter हो जाना चाहिए कुछ लोगों का जो मैसेज करते हैं ऐसे okay नहीं ऐसा कुछ कभी जैसे when you are not performing at a place you are just going जैसे हम वहाँ गए थे that beer fest जो हुआ था जो that वहाँ का कुछ हुआ था ऐसा याद नहीं है I'm sure कोई तो आया होगा मिलने कुछ funny था कुछ funny let me think of something nice give me time ताकि हम edit कर पाएं इस part को let me think of something nice यहाँ पे लिख सकते हैं a few moments later क्या मेरे साथ फनी चीज क्या हुई है मेरे साथ फनी चीज हुई है मैं था I was flying from Delhi to Bangalore for a show और मेरे साथ होता है सितंबर से मार्च जो पीक शो सीजन होता है मैं सिर्फ फ्लाइट्स में सोता हूँ मैं घर पे सोता ही नहीं हूँ मैं सितंबर से मार्च कम से कम 150 से 200 फ्लाइट्स लेता हूँ there's a flight there sometimes there are multiple flights a day I'm like an air hostess कई बार मुझे रूड लगता है कि मैं लोगों को सर्व नहीं कर रहा हूँ इतना ज्यादा फ्लाइट पे जा चुका हूँ मैं तो this was an early morning flight सुबह के 8:30 थे 8:25 पे मैं बोर्ड कराऊंगा आई थिंक मैं पहले या दूसरे रो में बैठा था मैं जाते ही मैं सो गया that's what I did the moment I got on I slept and I remember somebody came and while I was sleeping मैं ऐसे मुंह खोल के सो रहा हूँ and कोई मेरे बाद जो चल रहा था he said अरे करण सर and I opened my eyes यार थोड़ी देर में भी सोने दो जब फ्लाइट टेक ऑफ हो जाएगी तब बात करेंगे he's like okay and then I slept and उसके बाद the food got served I was eating and मेरे side वाली seat thankfully was empty so when that guy came back to talk to me मैंने उसको side पे बिठाया
तब तक मैं जाग चुका था थोड़ा सा, and we started talking. And when someone meets you, I have this need to be nice to them and talk to them. मुझे लगता है यार the least I could do is speak to those people. तो मैं खाना खा रहा था जो भी फ्लाइट में मिला था, I was eating that. कुछ I think कुछ चिकन टाइप का कुछ था जिसमें करी था थोड़ा सा. And I was talking to him, मैंने पूछा बैंगलोर क्या करने जा रहे हो? He said I just have a meeting. full तैयार होके था वो, अपना trousers, shirt tucked in, full business meeting के लिए तैयार. And he said I've been such a big fan. मैं 3 साल से आपका work follow कर रहा हूँ even before the videos. I'm like, oh very nice. पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों चढ़ा कि मुझको अपना खाना उसको दे देना चाहिए. पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया that I should give him my food. And I said, would you like some chicken? और मैंने ऐसे करा और सारी उसी टाइम पे थोड़ी सी वो प्लेन हिला और उस बेचारे की फुल टक्ड इन शर्ट ट्राउजर्स के ऊपर बटर चिकन. तो ऐसे मेरे को घूर रहा है कि मेरी मीटिंग है और मैं आज शाम की फ्लाइट से वापस आ रहा हूँ और मेरे पास चेंज ऑफ क्लोथ्स नहीं है. मेरे पास सिर्फ यही कपड़े हैं जिसके ऊपर आपने बटर चिकन गिरा दिए. और मैं उसको मैं कुछ नहीं कर सकता उस पॉइंट पे. मैं बोल भी नहीं सकता मैं तेरे को कपड़े खरीद के दे दूंगा. दैट साउंड्स सो रॉन्ग. तो उस मोमेंट आई हैव नो वे टू डील विद द सिचुएशन. So to cover it up, मेरे सामने नींबू पानी पड़ा था which I was drinking. I spilled some of it on myself to make him feel that मैंने पता नहीं क्यों करा था मैंने वो. It was too early in the morning. मैं सुबह 11 बजे के पहले मुझे किसी से बात नहीं करनी चाहिए. That was the takeaway. उस दिन के बाद से मैंने 12 बजे से पहले कोई फ्लाइट नहीं ली है क्योंकि मुझे लगा था मैं ऐसी हरकतें सुबह कर सकता हूँ, which is why I have been banned from my team to take flights before 12 o'clock. Oh my god. When was this? This was I think November December 2018. Oh. तब उसने बोला कि 3 साल पहले से देख रहा हूँ. शोज देख रहा था वो, लाइव शोज भी देख रहा था. उसने मेरे लाइव शोज देखे थे. एंड क्योंकि फेसबुक पेज तो था ना, फेसबुक पे मैं कुछ डालता रहता था, वीडियोस नहीं डालता था बट आई यूज्ड टू पुट अप कि हां शो रहे हैं. आई वाज दैट पर्सन जिसकी कोई वीडियोस नहीं है बट शोज फिर भी चल रही है, पता नहीं कैसे बट हो रहा था. राइट. ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड ये मेरे लिए दिस इज लाइक अ फीडबैक फॉर मी. यस, वेरी बदमाश. आपको बताना पड़ेगा योर फर्स्ट एंड करंट इंप्रेशन ऑफ सुकृति ग्रोवर. बहुत ही बढ़िया फर्स्ट इंप्रेशन. मैं सच बताऊं, आई डोंट रिमेम्बर. मैं फर्स्ट टाइम मिला कहाँ पे था? फर्स्ट जोमा लैंड में. आई वाज फैन गर्लिंग. आई क्लिक्ड अ पिक्चर विद यू बट वो मेरे पास है नहीं क्योंकि मेरा फोन खो गया था उसके बाद. तो फर्स्ट इंप्रेशन मेरे पास नहीं है. नहीं, मेमोरीज में कहीं पड़ा होगा उस पे. बहुत बढ़िया. आई रिमेम्बर जोमालैंड दिल्ली. Obviously, Zomaland Delhi मुझे डेट याद है 20 जनवरी 2019. Find it on your memories अगर मिलती है तो. अभी करते हैं. We're gonna check it now. 20 जनवरी 2019. I remember dates of my shows. 2019. 20th January 2019. 18 था. 18 में भी किया होगा फिर. 20th January 2019. I can bet to dude. Okay. अब खुलासा होगा. Let me check. मैं भी चेक कर रहा हूँ. I will have pictures of Zomaland. Archive stories. बहुत ही बढ़िया. This is the fun part of the conversation, guys. They're both of us are on our phones. Yes. Audio listeners, sorry. तो ये है फोटो फ्रॉम Zomaland. I don't know अगर फोकस में आ रही है कि नहीं. This is me on stage. आ रही है कुछ फोकस में आ रही है? हाँ. एंड ऊपर डेट दिख रही है. ओके. 20 जनवरी 2019. Dude. तो हाँ फर्स्ट इंप्रेशन. Oh yes. Even I found it. 20 जनवरी 2019. बहुत बढ़िया. स्क्रीनशॉट लेके हम डाल देंगे इन द एडिट. तो हाँ आई मीन फर्स्ट इंप्रेशन मेरे पास नहीं होगी बिकॉज आई एम श्योर आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल दैट डे. आई रिमेम्बर द फेस. आई रिमेम्बर आई स्पोक टू यू आफ्टर दैट. हमने वो बियर फेस्ट पे पोशाक के साथ हमने बात करी थी. So I remember that you were hustling. You were trying to make a vlog at that time. That was my first impression. After that, I think Poshak was trying his trick on me. Poshak लोगों पे कैसा जाएगा? Poshak was also hustling. और मैं यहाँ बैठा हुआ था. मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे? No, actually, like I thought you had a show, you had a segment or something. नहीं, पोशक ने मुझे बोला था प्लीज आ जाओ. मैं बोला ठीक है चलो. प्लीज आ जाओ. हाँ और मैं आ गया. और कुछ आई थिंक उसी दिन मैं किसी शो से आया था और मैं थका हुआ था and I wanted to do something and not just sit at home. But वो खाली था उस दिन तो. हाँ काफी बोरिंग था. And
उसके बाद आई थिंक कोई शो था कहीं पे, मुझे याद नहीं है, यहाँ पे गौरव भाई, हाँ गौरव भाई थे, यू मैसेज मी प्लीज मुझे बैक स्टेज आना है व्लॉग बनाने के लिए, like ये this is hustle. So my first and only impression of Sukriti is hustle, and that is a big takeaway from this. Keep hustling. Yes guys, मैंने मैसेज किया यार प्लीज मेरे को ना बैक स्टेज जाना है, कुछ कर दो. नहीं, उससे पहले एक और था. मेरे को YouTube Fan Fest का वो नहीं होता था, क्रिएटर, you were there 2009 क्रिएटर कैंप, तो उसमें बैक स्टेज जाना था, कुछ बैक स्टेज नहीं जाना था, मुझे अंदर जाना था, कुछ मेरे पास में कुछ दिक्कत था मेरे मेल में. अच्छा. So I was like यार ये तो बेइज्जती हो जाएगी, यहाँ से चली गई वापस, तो फिर मैं घुस गई कैसे भी. हर जगह सुकृति किसी ना किसी तरह पहुंच जाती. बैक स्टेज भी पहुंच गई थी ना, तो IIT पे इवेंचुअली IIT में पहुंच गई थी, IIT में पहुंच गई थी, नॉट एट YouTube, because I have somebody there, तो चलो अच्छी बात है. It's important to have that network that can get you. इतना अच्छा, इतनी बहुत ही बढ़िया वेल राउंडेड कॉन्वर्सेशन हुई है हमारी ये. Guys, हमने मतलब स्टार्ट नेटवर्क से किया था, एंड हमने नेटवर्क पे किया है. बहुत ही बढ़िया. I feel like a very pro writer right now. Yeah, that is true. And what is the current impression? Current impression is still hustle है. सुकृति मैं बता, first and only impression of you is hustle. लॉकडाउन में भी तूने बोला हम दिल्ली में रहते हैं, हम इन रियल लाइफ शूट करते हैं ना. नहीं, मेरी नानी मेरे साथ रह रही है, तो इट्स प्रॉब्ली नॉट द बेस्ट आइडिया जितनी भी प्रिकॉशंस. मैं बोला अरे मेरे को याद है आप तो दिल्ली में ही रहते हो, हम शूट करें साथ में. तो हसल, माय ओनली इंप्रेशन ऑफ सुकृति इज हसल. बहुत वेरी बदमाश हसल, दैट इज हर. my first impression was मैं बहुत फैन गर्ल किया था मैंने when I saw you at Zomaland. मैंने कहा यार ये कैसे किया, oh shit, oh मजा आ गया. फिर but I was with a cousin and वो ना बहुत subtle कि I don't care यहाँ क्या हो रहा है टाइप, ऐसे वैसे वाले. Why am I here? उसको बस दारू से मतलब है. I'm like okay fine. फिर मैं ऐसे उछल रही हूँ, I want to go and see him, I want to see him. फिर मैं आ गई and then मैंने फोटो क्लिक किया और मैं चली गई. मैं कही तो बहुत सही ट्रिक किया था. Then I met you. फिर उसके बाद हम फिर मेरा इम्प्रेशन फॉर्म हुआ वही बियर फेस्ट पे. ये तो बहुत चिल इंसान है. ये बहुत चिल इंसान है. मेरे को लगा नहीं था. जैसे कैमरा ऑफ होता है या लोग आसपास नहीं होते, मैं बिल्कुल चुप हो जाता हूँ, बहुत इंट्रोवर्ट हो जाता हूँ. He's very chill. मतलब मुझे लगा कि probably थोड़ा एटीट्यूड होगा या कुछ. है बहुत है. कभी I pick moments to bring it out. I want to know this now. Okay, fine. So that's it for today, guys. Thank you so much. No attitude. Thank you for having Chill Sing Magic on your podcast. It was a lot of fun. Yes, keep hustling and like, share, subscribe to my channel. मुझे बोलना नहीं पड़ा कुछ भी. मैं जहाँ बोला my channel, मैं बोल दूंगी, अपना शक्ल लगा दूंगी वहाँ. बहुत ही बढ़िया. Do that. ठीक है guys, we have editing. Thank you so much for watching. People who are listening to this on Spotify, Apple Podcast या जहाँ भी सुन रहे हो ऑडियो प्लेटफॉर्म वाले, प्लीज फॉलो, सब्सक्राइब, जो चीजें होती हैं. Apple Podcast रेटिंग छोड़ दो, very important. ठीक है. So yeah, that's it, and I'll see you guys soon with another one. Bye.